Hello friends, welcome to the Fundamental Pharmacy, and in this video lecture we are going to see part 5 of our Pharmathon GPAT 2022 Cracker MCQs, and in this video I am going to share with you new 20 MCQs, and I am going to explain in such a manner that at least explanation of one MCQ will cover at least more 2 or 4 MCQs. So let's start the today's video. चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और आज अपन पार्ट 5 देखेंगे फार्माथॉन जीपैट क्रैकर एमसीक्यू सीरीज का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस शानदार सेशन को चालू करते हैं। फार्माथॉन क्रैकर एमसीक्यू सीरीज पार्ट 5। इफ यू थिंक दिस वीडियो इज गुड फॉर यू, प्लीज लाइक इट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। देखो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो क्या पूछता है। लैंसोप्रेज़ोल इज नॉट यूज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग केस। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गैस्ट्राइटिस, ऑप्शन बी पेप्टिक अल्सर, ऑप्शन सी ज़ोलिंजर इलिसन सिंड्रोम, ऑप्शन डी थैलेमस हाइपरट्रोफी। तो देखो पूछा है लैंसोप्रेज़ोल किस में यूज नहीं करते, तो गैस्ट्राइटिस में आप ऑब्वियसली, गैस्ट्राइटिस मतलब क्या, इन्फेक्शन ऑफ योर स्टमक। So obviously if there is an infection in the stomach, so there will be hyperacidity, and that's why you have to use lansoprazole. In case of peptic ulcer also you have to use lansoprazole. Zollinger-Ellison syndrome, in that case also you have to use this, but it is not used in the thalamus hypertrophy. Remember, आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि lansoprazole जो है वो क्या है और वो कैसे एक्ट होता है, उसका यूज क्या है। तो चलिए देख लेते हैं इसके lansoprazole के बारे में ईच एंड एवरीथिंग। देखो lansoprazole, omeprazole, rabeprazole, dextromethorphan, esomeprazole, okay, azoles, these are nothing but the proton pump inhibitors. So जितने भी azoles है जैसे lansoprazole, omeprazole, rabeprazole, dextromethorphan, anti-secretory agent, they will inhibit the secretion of your gastric acid, and they are nothing but the substituted benzimidazole derivative. Okay, and they will inhibit the final step in the acid formation in your stomach, and that is nothing but the proton pump. So proton pump is involved in the acid formation at the last stage. जो proton pump होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो होता है, proton pump will make available of hydrogen ion which then combines with the chloride to form HCl. These benzimidazole substitute derivatives like omeprazole, rabeprazole, dextromethorphan, esomeprazole, lansoprazole, pantoprazole, all these drugs, they are irreversible inhibitor of sodium potassium ATPase, and it is nothing but the proton pump. So what are their uses? They are used in the gastric ulcer, duodenal ulcer, Zollinger-Ellison syndrome, stress induced अल्सर्स। मतलब आप बहुत ही टेंशन में रहते हो आप, तो उसकी वजह से भी अल्सर हो सकता है, तो उसमें भी यूज करते हैं। एस्पायरेशन निमोनिया, सो दीज आर द यूजेस, गैस्ट्रिक अल्सर, डुओडेनल अल्सर, ज़ोलिंजर-एलिसन सिंड्रोम, स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर्स, एस्पायरेशन निमोनिया। ओके, सो दीज आर द यूजेस, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इरिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज, दिस इज द क्लास सब्स्टिट्यूटेड बेंजइमिडाजोल डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें कौन से ड्रग आते हैं, सब प्रेजोल, ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, डेक्सट्रोमेथोर्पhan, पेंटोप्राजोल, लांसोप्राजोल, ये प्रेजोल काइंड के ड्रग जो है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर है थैलेमस हाइपरट्रोफी। ठीक है, लांसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, rabeprazole, they are other analog of omeprazole. Omeprazole is nothing but the prototype for this proton pump inhibitors. Remember, prototype होता है omeprazole, उसके मतलब उसके एक्शन के साथ में ही कंपेयर करते हैं बाकी एक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, pantoprazole and rabeprazole, these two drugs, pantoprazole, rabeprazole, these are available for intravenous use. Okay, pantoprazole is the most stable than other proton pump inhibitors. याद रखो, पेंटोप्राजोल, रेबेप्राजोल इंजेक्शन के लिए अवेलेबल है, आईवी से देते हैं। पेंटोप्राजोल क्या है, मोस्ट स्टेबल है अदर देन बाकी के ड्रग्स के। ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर जनरली दे आर प्रोड्रग, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर द प्रोड्रग। एक्टिव मोइटी इज सल्फेनामाइड, याद रखो। सो दे आर प्रोड्रग्स एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू नामाइड। सल्फेनामाइड इज द एक्टिव ड्रग। ओके, तो proton pump inhibitors are the drug of choice in case of peptic ulcer due to etiology of NSAID induced। मतलब यहाँ पे क्या है, जो पेप्टिक अल्सर्स है
या फिर NSAID इंड्यूस्ड अल्सर्स है, उसके में ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, याद रखो। इसके बाद में अगेन दे आर ड्रग ऑफ चॉइस इन द GERDs, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लेक्स डिसीज, उसमें भी ये ड्रग ऑफ चॉइस है। देन इट इज ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस इन जोलिंजर इलिसन सिंड्रोम। ये ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो इसके डायरेक्टली क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में जोलिंजर इलिसन सिंड्रोम के बारे में। तो इन केस ऑफ जोलिंजर इलिसन सिंड्रोम ड्रग ऑफ चॉइसेस, सो अगेन जो भी प्रेजोल जो है, ओमप्रेजोल, रैप्रेजोल, इसोमप्रेजोल, डेक्सट्राप्रेजोल, सो ऑल दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस। उसके बाद में यहाँ पे आपके 2-4 पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, मतलब 2-4 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर is associated with reduced absorption of vitamin B12। बहुत दिन तक आप उसको यूज करेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को, तो क्या करेंगे वो आपका विटामिन B12 का एब्सॉर्प्शन कम करेंगे। ऑब्वियसली विटामिन B12 का एब्सॉर्प्शन कम होगा तो आपको क्या होगा, पर्निशियस एनीमिया, याद रखो, ठीक। इट इज आल्सो related with the reduced absorption of calcium and that's why you may face a risk of hip fracture or osteoporosis। And lansoprazole is the most potent amongst all proton pump inhibitors। याद रखो lansoprazole that is the most potent in the family। सब में कौन सा potent ड्रग है, lansoprazole, ठीक है, याद रखो। and it is also safe in the pregnancy। omeprazole, lansoprazole, pantoprazole available as a IV प्रिपरेशन। इंट्रावेनस इंजेक्शन में कौन से है, इसोमप्राजोल, याद रखो, इस ओमेप्राजोल, इट इज अ आइसोमर ऑफ ओमेप्राजोल, देन लैंसोप्राजोल, देन पेंटोप्राजोल, दीज आर अवेलेबल एज अ IV। उसमें का इसोमेप्राजोल जो है, लैंसोप्राजोल जो है, मतलब ओरली भी अवेलेबल है और IV भी अवेलेबल है। तीनों यहाँ पे आपका 5 या 6 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएगा, ये सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मेरे बुक में है। नाउ चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पूछता है which of the following drug is associated with the reaction of synchronism। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। सिंकोना, देखो सिंकोनिज्म मतलब क्या कि इट इज रिलेटेड विद सिंकोना, और सिंकोना में क्या मिलता है आपको, सिंकोना में मिलते हैं अल्कोलाइड्स। तो सिंकोना के जितने भी अल्कोलाइड्स है उसका ड्रग होगा, तो दैट विल शो यू एडवर्स इफेक्ट ऑफ सिंकोनिज्म। Which of the following drug is associated with the reaction of synchronism? Option A valproic acid, option B quinidine, option C isoniazid, option D ethosuximide। जैसे कि मैंने बोला है सिंकोनिज्म मतलब क्या है, सिंकोना अल्कोलाइड्स, ठीक है। तो सिंकोना अल्कोलाइड्स क्या है, इसमें देखो, इसमें है क्विनिडीन, सिंकोनिडीन, ठीक है, क्लोरोक्विन वगैरह सब कुछ सिंकोना अल्कोलाइड्स हैं। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्विनिडीन। ओके, सो क्विनिडीन एंड अदर सिंकोना अल्कोलाइड्स they are associated with the adverse reaction of synchronism, ठीक है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पूछता है which of the following drug is associated with the reaction of hepatitis। ठीक है, ऑप्शन क्या है, वेल्पोरिक एसिड, क्विनिडीन, आइसोनियाजाइड एंड इथोसक्सिमाइड। तो यहाँ पे आपका आंसर है आइसोनियाजाइड हैज अ adverse effect of hepatic reactions, वही आंसर है, ठीक है, आइसोनियाजाइड। तो इसके बारे में बाद में कभी बात कर लेंगे, हेपेटाइटिस कितने ड्रग है क्या है, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे आपको डाला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। देखो पूछता है which of the following drug is associated with the reaction of स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम, और ऑप्शन क्या दिया है, देखो वेल्पोरिक एसिड दिया है, क्विनिडीन दिया है, आइसोनियाजाइड दिया है, इथोसक्सिमाइड दिया है। बहुत सारे लोगों को ये मालूम होता है कि स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड्स के बारे में तो मालूम होता है सबको कि इट इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड्स, बट बाकी का क्या, और भी ड्रग्स है जो स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम एज अ एडवर्स इफेक्ट दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा वेल्पोरिक एसिड इज एसोसिएटेड विद द रिएक्शंस ऑफ स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ये है क्या, स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम है क्या। तो स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम सीवियर, ये जो सिंड्रोम है, इट इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेनी ड्रग्स एंड इट इज नथिंग बट द सीवियर डर्मेटाइटिस multiform associated with the widespread lesion on the skin and mucous membrane occurs with the long term use of sulfonamides। जो भी ड्रग्स है, सल्फर ड्रग्स है, उसको अगर लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो आपके स्किन के ऊपर डर्मेटाइटिस होगा, मल्टीफॉर्म वाइडस्प्रेड लेशन, मतलब आपके जख्म भी होंगे स्किन के ऊपर, तो वो एडवर्स रिएक्शंस है, जैसे लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सल्फोनामाइड्स एंड अदर ड्रग्स, ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि कौन से ड्रग कॉज करते हैं। सो ड्रग्स कॉजिंग स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम एज अ एडवर्स इफेक्ट, तो उसमें एक ट्रिक भी है, आपको याद रखना है, स्पेशल वर्ड याद रखना है,
स्पेशल, स्पेशल में का पी, पी के सर के ऊपर 3 लिखा है मैंने। एस मतलब क्या, सल्फोनामाइड। पी मतलब क्या, पेनिसिलिन, फिनोबार्बिटॉन, फिनिटोइन। ई मतलब क्या, इरिथ्रोमाइसिन। सी मतलब क्या, कार्बामाजेपिन। आई मतलब क्या, आइबुप्रोफेन एंड अदर एनेसाइड्स। ए मतलब क्या, अलोपेरिनॉल। एल मतलब लैमोट्रिप्निन। सो यू कैन रिमेंबर द ड्रग कॉजिंग स्पेशल sp3 शेल, sp3 शेल। ठीक है, मतलब स्पेशल वर्ड याद रखो, पी को 3 बार लेना है आपको। ठीक है, मतलब ये स्पेशल या वर्ड याद रखना है, स्पेशल वर्ड याद रखो, इसमें P3 हो। तो दीज आर द ड्रग कॉजिंग जॉनसन जॉनसन सिंड्रोम। तो इसमें आपके 2 या 3 क्वेश्चन 100% कवर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एसोसिएटेड विद द रिएक्शंस ऑफ टेंडन डिसफंक्शन, कि टेंडन डिसफंक्शन किसका एडवर्स इफेक्ट है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस कि ऑप्शन ए है आपका डिजिटलिस, ऑप्शन बी है आपका नियासिन, ऑप्शन सी टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन डी फ्लोरोक्विनोन्स। तो यहाँ पे टेंडन डिसफंक्शन किसका एडवर्स इफेक्ट है पूछा है। तो फ्लोरोक्विनोन एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, जैसे आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, मोक्सीफ्लॉक्सासिन, और उसमें एडवर्स इफेक्ट होता है टेंडन डिसफंक्शन और टेंडन रप्चर। तो आपको यहाँ पे आप याद रखोगे फ्लोरोक्विनोन्स आर दे आर नथिंग बट द डीएनए गायरेज इनहिबिटर। डीएनए गायरेज इनहिबिटर्स होते हो और उसका मैकेनिज्म क्या है, डीएनए गायरेज इनहिबिशन। ठीक है, तो उनके टॉक्सिटी क्या होते हैं, एआईटी टॉक्सिटी होता है, जैसे आपका एनोरेक्सिया हो गया, भूख न लगना। ठीक है, एनवीडी, एनवीडी मतलब नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये तो सब में कॉमन आता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड पेन। यहाँ पे ये चीज याद रखो कि ट्रोवाफ्लोक्सासिन कैन कॉज सीवियर हेपेटोटॉक्सिटी। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, ट्रोवाफ्लोक्सासिन कैन कॉज सीवियर हेपेटोटॉक्सिटी। देन सीएनएस टॉक्सिटी, जैसे कंफ्यूजन हो गया, nervousness, agitation, hallucination, rarely a convulsions, especially in the patient with receiving INH, isoniazid. Convulsion can occur with the patient receiving isoniazid, theophylline, and other NSAID if you take these fluoroquinolones with these drug. रेसिपेक्ट में आते हैं टेंडन एंड कार्टिलेज डैमेज। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको, टेंडन एंड कार्टिलेज डैमेज। सो फ्लोरोक्विनोन्स दे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑफ टेंडन एंड कार्टिलेज डैमेज। रप्चर ऑफ शोल्डर हैंड्स एंड चाइल्ड्स टेंडन। जो भी टेंडन्स होते हैं आपकी, जो भी टेंडन क्या होते हैं, टेंडन इज नथिंग बट द मतलब इट इज लाइक इन बिटवीन मसल एंड बोन, इसको बोलते हैं टेंडन। सो टेंडन विल बी डैमेज्ड और कार्टिलेज विल बी डैमेज्ड बाय फ्लोरोक्विनोन्स। याद रखो आप, अगर वो डैमेज हो गया तो सो इफ फ्लोरोक्विनोन्स ने डैमेज कर दिया आपके टेंडन्स को, तो उसमें इसके बाद में क्या, सो यू मे रिक्वायर सर्जिकल रिपेयर, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी लगेगा, सर्जरी करना पड़ेगा आपको, टेंडन ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, स्टॉप द ट्रीटमेंट इफ पेशेंट एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ पेन, इन्फ्लेमेशन एंड रप्चर ऑफ टेंडन। जहाँ पे ये जॉइंट्स है उसमें अगर पेन होता है आपको ट्रीटमेंट के दौरान फ्लोरोक्विनोन्स के, तो आपको ट्रीटमेंट स्टॉप करना है। ठीक है, these drugs should be avoided in the pregnancy, nursing mothers and young children। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमन है, नर्सिंग मदर्स मतलब जो लैक्टेटिंग मदर्स है वो, और जो यंग बच्चे हैं उनमें ये देना नहीं है, अवॉइड करना है। ठीक है, इसमें एलर्जिक रिएक्शन भी होता है, लाइक dermatitis and all that. Remember one more thing here. These fluoroquinolones can cause photosensitivity reaction. Photosensitivity reaction ये एक important आपका, यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन मतलब आप ये गोली आपने खाई और धूप में चले गए तो आपको स्किन के ऊपर रिएक्शन आ जाएगा, दैट इज अ फोटोसेंसिटिविटी। ल्यूकोपेनिया, रीनल डैमेज एंड हेपेटिक डैमेज। सो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ फ्लोरोक्विनोन्स। तो यहाँ पे आपको फ्लोरोक्विनोन्स का सब कुछ बोला है मैंने, क्लास बोला है, उसका एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोला है, उसका एडवर्स इफेक्ट बोला है। ठीक है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है फ्लोरोक्विनोन्स में कि आप उसका जनरेशन देख सकते हो कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन कौन से एग्जांपल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पूछता है ए ड्रग एंडिंग विद द सफिक्स प्रिल इज अ क्लास ऑफ। ऑप्शन ए है आपका S2 ब्लॉकर, ऑप्शन बी है आपका एस इनहिबिटर्स, ऑप्शन सी है आपका एंटी फंगल, ऑप्शन डी है आपका बीटा एगोनिस्ट। तो यहाँ पे देखो पूछा है ए ड्रग एंडिंग इन द सफिक्स प्रिल। प्रिल किसके एंडिंग में होता है, S2 रिसेप्टर ब्लॉकर, एस इनहिबिटर्स, एंटी फंगल, बीटा एगोनिस्ट। तो यहाँ पे याद रखो कि जो प्रिल्स होते वो होते एस इनहिबिटर्स। ठीक है, एस इनहिबिटर्स जो होते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, वो होते प्रिल्स, उसके एंड में लगता है। जैसे आपका कैप्टोप्रिल हो गया,
इनाप्रिल हो गया, लिसोनोप्रिल हो गया, पेरिंड्रोप्रिल हो गया, फोसिनोप्रिल हो गया। सो दीज ऑल ड्रग्स आर नथिंग बट द एस इनहिबिटर्स। ठीक है, उसमें आपको याद रखना है कैप्टोप्रिल एंड पेरिंड्रोप्रिल दीज आर नॉट अ प्रो ड्रग। बाकी के जितने भी प्रिल्स है वो सब प्रो ड्रग होते हैं, याद रखो। बाकी कैप्टोप्रिल को छोड़ के, पेरिंड्रोप्रिल को छोड़ के सब बाकी प्रो ड्रग है। ठीक है, इसमें यह भी याद रखना है आपको कि कैप्टोप्रिल के स्ट्रक्चर में जो है वो कौन सा अमीनो एसिड आता है। सो देयर इज अ प्रोलीन अमीनो एसिड इन द कैप्टोप्रिल स्ट्रक्चर, यह भी याद रखो। तो चलो, इस क्वेश्चन में भी आपका 3 क्वेश्चन मैंने आपको 3 ये कवर ऐसा मैंने बोला है कि जैसे एस टू रिसेप्टर ब्लॉकर क्या होते हैं। मैंने अगर बनाया नोट्स की सफिक्स एस टू रिसेप्टर ब्लॉकर जो भी होते हैं वो दे आर यूज एज एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स। सिमेंटिडिन हो गया, रेनिटिडिन हो गया, फैमोटिडिन हो गया, ठीक है, निजाटिडिन हो गया। सो टीडिन, TIDIN, इन जो होता है सिमेंटिडिन, रेनिटिडिन, फैमोटिडिन, निजाटिडिन, ऑल दीज आर द एस टू रिसेप्टर ब्लॉकर। और जैसे प्रिल्स हो गए, कैप्टोप्रिल, इनाप्रिल, लिसोनोप्रिल, फिसोनोप्रिल, रैमिप्रिल, ऑल दीज आर द एस इनहिबिटर्स। जैसे एंटीफंगल में एजोल आता है, जैसे माइकोनेजोल, फ्लूकोनेजोल, इट्राकोनेजोल, लुलिकोनेजोल। सो ऑल दीज आर द एंटीफंगल। ठीक है, और आप याद रखो सर्टान्स, टिमिसर्टान, लोसर्टान, वालसर्टान, इजरासर्टान, ऑल दीज आर द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। मतलब आप ऐसे ही याद रख सकते हो। ठीक है, सो बीटा एगोनिस्ट क्या होता है आपका, एगोनिस्ट सल्फेटामोल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में भी आपका 2-3 कवर हो चुका है। चलिए, इसमें क्या है कि ये जो नोट्स है सब कुछ ये मेरे बुक के है, फंडामेंटल्स ऑफ जीपैट, ये जो बुक है इसमें ये सब नोट्स है ये सब, और जो क्वेश्चंस है ये सब इस बुक में है। तो इसमें चैप्टर वाइज नोट्स, एमसीक्यूज, ये देखो वहाँ पे हाईलाइट लिखा है मैंने, सब्जेक्ट एंड चैप्टर वाइज नोट्स, रिलेटेड नोट्स मिलेगा क्विक रिवीजन प्रिपरेशन के लिए। मतलब इसमें एमसीक्यूज भी है और नोट्स भी है। और ये जो बुक है इसमें सिर्फ एमसीक्यूज है, और इस बुक में के लास्ट ईयर में तकरीबन 55-60 एमसीक्यूज आए थे, याद रखो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखो पूछता है, डू यू मीन बाय कीमोडोम्स। कीमोडोम्स क्या होते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्लांट ऑफ सेम स्पेसिस, प्लांट ऑफ सेम स्पेसिस सेम मॉर्फोलॉजी, प्लांट ऑफ सेम स्पेसिस सेम मॉर्फोलॉजी बट डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एंड नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन देखो फार्माकोग्नोसी का क्वेश्चन है आपका। और कीमोडोम्स, if a plant having plant of same species, same morphology but different chemical constituents, so they are called as a chemodoms। ठीक है, 2-3 स्पेसीज है, उसका मॉर्फोलॉजी भी सेम है लेकिन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसका अलग है, तो उसको बोलेंगे कीमोडोम्स। ठीक है, कीमोडोम्स आर नथिंग बट द प्लांट ऑफ सेम स्पेसीज, सेम मॉर्फोलॉजी बट डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पूछता है विच हार्मोन इज रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन। देखो क्या पूछा है, विच वन हार्मोन इज रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन। चलो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एबिसाइजिक एसिड, ऑप्शन डी इथिलीन। तो ये पूछा है तो साइटोकाइनिन इज द करेक्ट आंसर। ये देख लेते हैं कि हार्मोन्स कितने टाइप के होते हैं और उसका हर एक का रोल क्या है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है नाइपर में आता है, जीपेट में आता है, और इसके रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस भी है नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये भी आपका कवर हो जाएगा, मतलब 2-4 क्वेश्चन का, 4 नहीं मतलब आपके इस टेबल में कम से कम 5-6 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया है डिफरेंट प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन द पीटीसी। पीटीसी मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर में कौन से हार्मोन यूज होते हैं वो दिया है। यहाँ पे कैटेगरी दिया है मैंने, ठीक, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरलिंस, एबिसिजिक एसिड एंड इथिलीन, ये कैटेगरी है हार्मोन्स का। उसके नेचुरल एग्जांपल्स कौन से, नेचुरल हार्मोन्स कौन से, और उसका सिंथेटिक डेरिवेटिव कौन सा है, और उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो ऑक्सिन्स होते हैं, ऑक्सिन्स उसमें नेचुरली कौन से आते हैं ऑक्सिन्स, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, उसको बोलते हैं IAA, इंडोल 3 एसिडोनाइट्राइल, इसको बोलते हैं IAN, और फिनाइल एसिटिक एसिड। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सिन्स। देन सिंथेटिक ऑक्सिन्स कौन से, सिंथेटिक डेरिवेटिव इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड IBA, उसको IBA बोलते हैं, नेप्थिलिनोऑक्सी एसिटिक एसिड NOA बोलते हैं। सो दीज आर द synthetic derivative of oxygen, and all oxygens are involved in the root development of plant. So these are important for root development of plant, याद रखो। चलो देख लेते हैं साइटोकाइनिन्स के बारे में। साइटोकाइनिन्स आर नथिंग बट द एग्जांपल नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनिन्स, G18, उसके बाद आपका डाइमिथाइल अमाइनो प्यूरिन, देन काइनेटिन एंड एडेनिन। सो दीज आर द, देख लेते हैं नेक्स्ट।
सो साइटोकाइनिन से G18 होता है डाइमिथाइल अमोनोप्यूरिन काइनेटिन, एडेनिन डाइफिनाइल यूरिया उसका सिंथेटिक डेरिवेटिव है। तो चलिए साइटोकाइनिन्स के बारे में देख लेते हैं, एडेनिन एंड एडेनिन। सो दीज आर द naturally occurring cytokines. So its synthetic derivative are nothing but the adenine diphenyl urea. So it is a synthetic or cytokinin. Then what is the role of cytokinin? So they are required in the plant to develop a shoot. So shoot development, cell division के लिए cytokinins आपका लगता है plant में. So these are the cytokinins. Now next one is gibberellins. So for example, say naturally occurring gibberellins like gibberellin A and gibberellic acid. So these are the naturally. There are no synthetic derivative for gibberellins, and these are involved in the seed germination and fruit growth. So plant में seed का germination करने के लिए और fruit के growth के लिए gibberellins होते हैं. Next one is abscisic acid. abscisic acid जो है उसका naturally कौन सा है? abscissin 1, abscissin 2. derivative है malic hydrochloride and morphactin. Okay, so these abscisic acid is nothing but they are the growth inhibitor. They are a growth inhibitor. याद रखो यहाँ पे growth inhibitor कौन से? abscisic acid. इसके बारे में क्वेश्चन आएगा आपको नेक्स्ट. Growth inhibitors are nothing but the abscisic acid and they are also involved in the closing of stomata. Closure of stomata. ठीक है, याद रखो. Next one hormone is a ethylene. Ethylene is nothing but the ethylene has a naturally occurring hormone in the plant. Okay, its synthetic derivative is not there, and this ethylene is in the fruit ripening. Okay, so आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि fruit ripening हार्मोन कौन सा है. So which hormone is responsible for the fruit ripening in the plant? So it is a ethylene. याद रखो ये पूरा चार्ट आपको बाय हार्ट करना है, इसमें आपके 2-4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे. ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है, देखो पूछता है विटामिन, which vitamin is essential for the plant tissue culture. ठीक है, ऑप्शंस क्या दिया है? vitamin B1, vitamin B12, vitamin C and pantothenic acid. Okay, so vitamin B1 known as a thymine, and thymine is an essential component of tissue culture. याद रखो, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अपन. ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे चार्ट दिया है मैंने टिश्यू कल्चर मीडिया रिक्वायरमेंट कि जो टिश्यू कल्चर मीडिया होता है, मीडियम होता है, उसमें क्या क्या होना चाहिए. उसमें इनऑर्गेनिक मिनरल्स होने चाहिए, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम, phosphate, calcium, magnesium, sulfur. Micronutrients like copper, zinc, then iron and chlorine, boron and molybdenum. Organic content उसमें उसके लिए क्या होना चाहिए कि source of carbon is nothing but the sucrose, D-glucose. They are commonly used. Glycerol, myoinositol are also a source of carbon. Peptone, yeast extract, coconut water, tomato juice, malt extract. So these are the source of carbon. Which are the vitamins essential for plant tissue culture? So thymine, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा. वो thymine is nothing but the essential vitamin for tissue culture. Then riboflavin, pyridoxine, ascorbic acid and cyanocobalamin are also important, but main vitamin is nothing but the thymine. ठीक है, याद रखो आप. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या रिक्वायरमेंट है. So amino acid for plant tissue culture. So commonly used amino acid are L-aspartic acid and L-asparagine, L-glutamic acid and L-glutamine. Amino acids and their amines, they are mostly used as amino acid for plant tissue culture. So next one is a solidifying agent. Agar is the most commonly used solidifying agent for plant tissue culture media. इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है. Agar is the most commonly used as a solidifying agent in the plant tissue culture media. उसके बाद में क्या है, जिलेटिन भी यूज करते हैं कभी कभी. ठीक है, ऑप्टिमम पीएच कितना होना चाहिए मीडिया का? 5 to 6. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. वो पूछता है, हो जाएगा, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रोथ इनहिबिटर ऑफ प्लांट. यहाँ ऑप्शंस ऑक्सिन, काइनेस एसिड, एबिसाइजिक एसिड और लास्ट ऑप्शन है गिबरलिन. तो इसमें आपका एबिसाइजिक एसिड आंसर है. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्या है. देखो पूछता है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द फ्रूट राइपनिंग पर्पस. वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द फ्रूट राइपनिंग पर्पस. अगेन प्लांट हार्मोन के ऊपर क्वेश्चन है. पे देखो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स, गिबरलिक एसिड 3 एंड इथिलीन. तो यहाँ पे मैंने बोला था प्रीवियस स्लाइड में कि इथिलीन इज यूज्ड एज अ हार्मोन. इथिलीन इज अ प्लांट हार्मोन दैट हैज अ रोल इन द फ्रूट राइपनिंग. ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट वन. आयरन कंटेंट ऑफ सब जेलेटिन कैप्सूल, कंटेंट ऑफ सब जेलेटिन कैप्सूल शुड नॉट बी मोर देन. ऑप्शन क्या है देख लेते हैं. ए 10 ppm, ऑप्शन बी 15 ppm, ऑप्शन 3 20 ppm, ऑप्शन डी 30 ppm.
तो यहाँ पे याद रखो आप कि आयरन कंटेंट ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल शुड नॉट बी मोर देन 15 ppm। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपका जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है उसका आयरन कंटेंट लिमिट में होना चाहिए, नॉट मोर देन 15 ppm। इसके बारे में अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पूछता है कैपेसिटी फॉर कैप्सूल नंबर 3, कैप्सूल नंबर 3 में कितना वॉल्यूम आएगा, ठीक है। ऑप्शन है आपके 0.3 ml, ऑप्शन बी 0.75 ml, ऑप्शन सी 0.25 ml, देन ऑप्शन डी 0.55 ml, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ कैप्सूल कितने होते हैं, उसमें वॉल्यूम कितना है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ ड्रग आएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने दिया है कैप्सूल साइज, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम इन ml एंड अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी इन मिलीग्राम, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कैप्सूल्स, ठीक है, कैप्सूल, ठीक है। सो कैप्सूल नंबर 10, 11 एंड 12। देखो यहाँ पे लिखा है वेटरनरी यूज। सो कैप्सूल नंबर 10, 11 एंड 12 these are used for veterinary purpose, they are not used for the humans। सो वेटरनरी के लिए कैप्सूल नंबर 10, 11, 12 है। इसमें कैप्सूल नंबर 10 में कितना ml आएगा, 30 ml, कैप्सूल नंबर 11 में 50 ml, कैप्सूल नंबर 12 में 7.5 ml। लेकिन ये जो कैप्सूल है ये ह्यूमन यूज के लिए नहीं, दीज आर फॉर वेटरनरी यूज। वेटरनरी मतलब जानवर की दवा, ठीक है। वेटरनरी मतलब जानवर के लिए यूज करना है इसको। उनको उनका जो डोज होता है वेटरनरी का वो ज्यादा लगता है ना, तो इसलिए उनको बड़ा साइज का कैप्सूल लगेगा, ठीक है। नाउ चलो देख लेते हैं ह्यूमन यूज के लिए कौन से कैप्सूल होते हैं। सो कैप्सूल्स फॉर ह्यूमन यूज। सो ह्यूमन यूज के लिए कैप्सूल होते हैं 00000012345, ठीक है। तो देखो 000 से लेके 5 तक, 0001 2 00000 देन 125 12345 याद रखो, ठीक है। सो अमॉन्ग्स दिस 000 कैप्सूल नंबर 000 इज द लार्जेस्ट कैप्सूल, इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट आएगा। सो 000 में कितना आएगा, 1.37 ml लिक्विड आएगा और 950 to 1 ग्राम तक आपका पाउडर बैठ सकता है उसमें, ठीक है। कैप्सूल नंबर 00 में 0.9 ml आएगा, 650 to 760 मिलीग्राम ड्रग आएगा। कैप्सूल नंबर 0 जो है इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ द ड्रग डोज ऑफ ड्रग विल हैव इन अ रेंज ऑफ 500 मिलीग्राम। सो कैप्सूल नंबर 0 मोस्ट वाइडली यूज्ड। सो कैप्सूल नंबर 0 में आएगा आपका 0.75 ml और उसमें पाउडर आएगा आपका 450 to 544 मिलीग्राम। नंबर कैप्सूल नंबर 1 0.5, कैप्सूल नंबर 2 0.40, कैप्सूल नंबर 3 यहाँ पे देखो कैप्सूल नंबर 3 है 0.3 ml, 0.3 ml। इसके यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, ठीक है। तो कैप्सूल नंबर 1 में 300 मिलीग्राम ड्रग आएगा, कैप्सूल नंबर 2 में 250, कैप्सूल नंबर 3 में 200, कैप्सूल नंबर 4 में 150 और सबसे छोटा कैप्सूल होता है आपका कैप्सूल नंबर 5, याद रखो। कैप्सूल नंबर 5 में आपका 100 मिलीग्राम ड्रग आएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैप्सूल साइज एंड देयर कैपेसिटी, ठीक है। ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, जीपैट में पूछते हैं, नाइपर में पूछते हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम, गवर्नमेंट ऑफिसर एग्जाम, आपका ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, इसमें सबके लिए ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको ये चार्ट चाहिए तो मेरा बुक लेना पड़ेगा, ठीक है। मेरे बुक में सब कुछ चार्ट वाइज दिया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखो पूछता है ब्लूम स्ट्रेंथ टेस्ट फॉर जेलेटिन इज कैरिड आउट एज, मतलब ब्लूम स्ट्रेंथ टेस्ट जो होता है वो कैसे कैरी आउट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इन 6.66% सोल्यूशन, ऑप्शन बी दिया है एट 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी दिया है 8% सोल्यूशन, ऑप्शन डी दिया है बोथ ए एंड बी। यहाँ पे आपको आंसर है बोथ ए एंड डी। सो ब्लूम स्ट्रेंथ फॉर जेलेटिन, ब्लूम स्ट्रेंथ टेस्ट फॉर जेलेटिन इज कैरिड आउट इन अ सॉल्यूशन ऑफ 6.66% एंड एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पूछता है सॉफ्ट जेलेटिन शेल हैज ब्लूम स्ट्रेंथ इन अ रेंज ऑफ, देखो ऑप्शन ए दिया है 150 to 100, ऑप्शन बी 200 to 300, ऑप्शन सी 50 to 100, ऑप्शन डी नन ऑफ दो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल शेल विल हैव ब्लूम स्ट्रेंथ इन अ रेंज ऑफ 150 to 200। इसके बारे में नेक्स्ट डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पूछता है पीएच ऑफ टाइप ए जेलेटिन, ऑप्शन ए दिया है 7 to 9, ऑप्शन बी दिया है 4.5 4.7 to 5.4, ऑप्शन सी दिया है 5 to 6, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये पूरे 3 क्वेश्चन जो है इसका पूरा का
पूरा का एक्सप्लेनेशन अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो याद रखो सब्स्टिट्यूटिंग कैप्सूल का प्लूम होता है 150 टू 200, आइसोलेटेड पीएच ऑफ टाइप ए 7 to 9। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो देखो यहाँ पे मैंने टेबल बना के दिया है आपको, ये मेरे टेबल मेरे बुक में है और एज इट इज, ठीक है, बुक का ही कॉपी किया है यहाँ पे। तो पैरामीटर टाइप ए जिलेटिन, टाइप बी जिलेटिन, ठीक है, टाइप ए जिलेटिन, टाइप बी जिलेटिन, उसके पैरामीटर्स कौन से, ठीक है, मतलब सब कुछ आएगा इसमें। सो ब्लूम स्ट्रेंथ, ब्लूम, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। देखो ब्लूम स्ट्रेंथ इज नोन एज आल्सो नोन एज जेल स्ट्रेंथ, ब्लूम स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड एज जेल स्ट्रेंथ। ठीक है, नाउ टू कैरी आउट द ब्लूम स्ट्रेंथ टेस्ट, so it is measured in the Bloom gelometer. Bloom gelometer is the apparatus which is used to measure the Bloom strength. याद रखो। So what is Bloom strength? It will indicate the strength of cross-linking. Bloom strength is nothing but it will indicate the strength of cross-linking of gelatin molecule and molecular weight of gelatin. ठीक है, तो ब्लूम स्ट्रेंथ क्या दिखाता है कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है वो जेलेटिन का, और उसमें क्रॉस लिंकिंग कितना है पॉलीमर्स में, मतलब जेलेटिन का एक मोनोमर दूसरा मोनोमर के साथ अटैच जब होता तो उसमें कितना क्रॉस लिंकिंग है वो आपको दिखाएगा ब्लूम स्ट्रेंथ। सो क्रॉस लिंकिंग एंड मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, नाउ दिस ब्लूम स्ट्रेंथ इज परफॉर्म्ड ऑन 6.66% सॉल्यूशन ऑफ जेलेटिन एट 10 डिग्री सेल्सियस फॉर 17 आवर्स। याद रखो इसमें एक क्वेश्चन आपका जो प्रीवियस स्लाइड का वो कवर हो जाएगा। ठीक है, उसमें नाउ दिस ब्लूम स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द पॉइंट टू रिमूव प्लास्टिक प्लंगर ऑन द सॉल्यूशन। मतलब ये छोड़ो, ये इसके बारे में आप जेलोमीटर का है सब डिस्क्रिप्शन। देन आइडियल रेंज फॉर ब्लूम 150 to 250 ग्राम्स, ये 150 to 250 ग्राम्स ब्लूम आइडियल रेंज होता है जेलेटिन के कैप्सूल के लिए, एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल के लिए। याद रखो इसमें क्वेश्चन अबाउट, ठीक है, क्वेश्चन कवर हो जाएगा। नाउ द कॉस्ट ऑफ जेलेटिन इज बिकॉज ऑफ द ब्लूम स्ट्रेंथ। ठीक है, जितना ज्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ है उसका कॉस्ट उतना ही ज्यादा होगा। मतलब एम्प्टी जेलेटिन जो शीट्स होते हैं आप अगर खरीदने जाओगे, वैसे तो आपको देखे नहीं क्योंकि जेलेटिन के शीट्स होते हैं वो ब्लास्ट में भी यूज करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट में, तो उसको आपको देखे नहीं, आपके लिए लाइसेंस लगेगी। ठीक है, तो ब्लूम स्ट्रेंथ जो भी जेलेटिन का ज्यादा होगा उसका कॉस्ट ज्यादा होगा, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, नाउ देख लिए टाइप ए जेलेटिन के ब्लूम स्ट्रेंथ कितने होते हैं। ब्लूम स्ट्रेंथ फॉर टाइप ए जेलेटिन 240 to 300, टाइप बी जेलेटिन का कितना होता है 200 to 250। याद रखो। नाउ सोर्स एंड आइसोलेट पीएच। ठीक है, टाइप ए जेलेटिन का सोर्स क्या होता है pork skin एंड इट इज एसिड ट्रीटेड, उसका आइसोलेट पीएच होता है 7 to 9। ठीक है, टाइप ए मतलब एसिड ट्रीटेड, याद रखो। ठीक है, टाइप बी जेलेटिन का कितना कहाँ से आता है, टाइप बी जेलेटिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीन बोन्स एंड इट इज एसिड नहीं, इट इज अल्कली ट्रीटेड, इट इज बेस ट्रीटेड। इसका आइसोलेट पीएच होता है 7 इसका आइसोलेट पीएच होता है 4.7 to 5। ठीक है, नाउ विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी ऑफ जेलेटिन इंडिकेट्स द मॉलिक्यूलर चेन लेंथ। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ जेलेटिन सॉल्यूशन इंडिकेट द मॉलिक्यूलर चेन लेंथ एंड इट शुड बी 25 to 45 मिलीपोइस। ये सब जीपैट नाइपर के लिए सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखो आयरन कंटेंट ऑफ जेलेटिन शुड नॉट बी मोर देन 15 ppm। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन प्रीवियस स्लाइड में था, ये क्वेश्चन था और आपका ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये इसमें 2-4 क्वेश्चन आपके 100% कवर हो जाएंगे, ये चार्ट पढ़ लो पूरा। ठीक है, ये चार्ट मेरे बुक में एज इट इज है। ठीक है, क्योंकि ये चार्ट मैंने ही बनाया है। तो ये सब जो नोट्स है ये आपको ये बुक में मिलेंगे, एमसीक्यूज इस बुक के। ठीक है, आपको लेना है अगर बुक तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपका पूरा प्रोसेस मैं दे दूंगा आपको। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 3 क्वेश्चन बाकी है। Which of the following is commonly used in the clinical trials? देखो पूछता है which dosage form commonly used in the clinical trials। ऑप्शन क्या दिया है, टैबलेट, कैप्सूल, ऑप्शन सी सस्पेंशन, ऑप्शन सी सिरप, ऑप्शन डी इंजेक्शन। देखो टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, ये इन सब में से क्लिनिकल ट्रायल में कौन सा डोसेज फॉर्म मोस्ट कॉमनली यूज होता है पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका यहाँ पे कैप्सूल, ऑप्शन बी। आप बोलेंगे सर कैसे, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना भाई, मैं उसी के लिए बैठा हूँ ना, डोंट वरी। टैबलेट जो होता है, टैबलेट क्या होता है, टैबलेट इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ योर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्लस योर एक्सिपिएंट, और एक्सिपिएंट प्लस एपीआई ग्रेन्यूल करते हैं, ग्रेन्यूल के बाद में उसका कॉम्प्रेशन करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कॉम्प्रेशन फोर्स जो होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट कॉम्प्रेशन फोर्स देयर इज अ
energy involvement, and there is involvement of different additives. So there might be possible of additive plus your drug interaction, additive drug interaction or drug diluent interaction. And again, because of the compression force there might be more interactions. So tablet के इसमें इंटरेक्शन होते हैं, ड्रग एक्सिपिएंट इनकम्पेटिबिलिटी हो सकता है। कैप्सूल में क्या हो रहा है कि कैप्सूल में आपको यू जस्ट हैव टू encapsulate your drug into the empty gelatin capsule। इनर्ट कैप्सूल शेल जो होता है उसमें आपको ड्रग एनकैप्सुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ड्रग इंटरेक्शन भी नहीं होगा और जो कैप्सूल शेल है वो इनर्ट होता है, और ठीक है आप इसमें एक्सपिएंट के बजाय डायरेक्टली आपका पाउडर भी मतलब डायरेक्टली एपीआई भी डाल सकते हो। सो कैप्सूल इज द मोस्ट कन्वीनियंट डोसेज फॉर्म फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। सिरप में क्या हो रहा है, सिरप में आपका ड्रग है, उसमें सिरप है, शुगर सिरप, उसमें वाटर भी है। सो देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग hydrolysis, oxidation, and you have to add preservative and all that. So formulation consideration for tablet, syrup, injection, there are a lot of problems, and there are a lot of factors you have to consider during the designing of tablet, syrup, and injection. So capsule is the most inert one. So that's why कैप्सूल इज कॉमनली यूज्ड एज अ डोसेज फॉर्म इन क्लिनिकल ट्रायल्स। ऐसा नहीं कि ये नहीं यूज करते, ये भी यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली कैप्सूल यूज करते हैं, याद रखो। क्वेश्चन है आपका, देखो पूछता है विच व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, कि विटामिन B12 के लिए एब्सॉर्प्शन के लिए क्या लगता है। सो ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी केमोट्रिप्सिन, ऑप्शन डी इंट्रिंसिक फैक्टर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको इतना याद रखना है कि विटामिन B12 का एब्सॉर्प्शन जो है फ्रॉम द जीआईटी, आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है वहां से उसका एब्सॉर्प्शन होता है, और वो एब्सॉर्प्शन एज अ एक्टिव एब्सॉर्प्शन होता है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो मैकेनिज्म है एब्सॉर्प्शन का, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मैकेनिज्म फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम जीआईटी। नाउ फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 you require a factor, you require a transport factor that is known as a intrinsic factor, and it is nothing but it is a glycoprotein, it is a glycoprotein that is required to transport the vitamin B12 across the lumen of GI। ओके, याद रखो उसमें एसिडिक पीएच भी होना चाहिए। सो इंट्रिंसिक फैक्टर एंड एचसीएल, दीज आर द आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछता है मैनोज एंड ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज आर डेडेस्ट ऑफ ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज आर डेडेस्ट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। देखो ऑप्शन है डायस्टेरोमर्स, इनेंशियोमर्स, इपीमर्स एंड एनोमर्स। देखो यहाँ पे आंसर है आपका इपीमर्स, इपीमर्स, मैनोज गैलेक्टोज दे आर द इपीमर्स ऑफ ग्लूकोज। सो मैनोज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज दे आर द इपीमर्स ऑफ ईच अदर। चलो देख लेते हैं इपीमर्स क्या होता है, एनोमर्स क्या होता है। इपीमर्स मतलब क्या, if the sugar is differing from another sugar at a specific carbon atom other than anomeric carbon atom, ठीक है। देखो यहाँ पे शुगर, एक शुगर दूसरे शुगर के शुगर से डिफरेंट है, बट कहा अराउंड ओनली वन सिंगल कार्बन एटम। द अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन ग्रुप इज डिफरेंट एट अ सिंगल कार्बन एटम other than anomeric carbon atom, then such kind of sugars are called as epimers of each other, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैनोज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैनोज, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। सो ऑल दीज शुगर्स आर नथिंग बट द हेक्सो शुगर, दे आर द अल्डो हेक्सोस, ठीक है, याद रखो। अल्डो हेक्सोस है शुगर है, उनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है एक कार्बन एटम पे। देखो गैलेक्टोज, मैनोज में क्या है, कार्बन नंबर 2 पे क्या है, देखो अरेंजमेंट, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोक्सिल का एंड हाइड्रोजन का अरेंजमेंट अलग है, ठीक है। ग्लूकोज में क्या है, वो अलग है, देखो ग्लूकोज में अलग है यहाँ पे, और यहाँ पे गैलेक्टोज में कार्बन नंबर 4 पे देखो ये ग्लूकोज है। सो मैनोज इज अ C2 इपीमर ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इज अ C4 इपीमर ऑफ ग्लूकोज, याद रखो, ठीक है, ये मेरे बुक में दिया है। उसके बाद एनोमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स क्या होते हैं, देखो जब शुगर जब सॉल्वेंट में डालेंगे, शुगर जब वाटर में डालेंगे तो उसका टाउटोमेरिज्म फॉर्मेशन होता है, टाउटोमर्स, ठीक है। कीटो इनॉल फॉर्म तैयार होता है, मतलब कीटो इनॉल फॉर्म। देखो यहाँ पे क्या है, इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है, ग्लूकोज का इनॉल फॉर्म है। तो दीज इनॉल फॉर्म्स आर नथिंग बट दे आर अल्फा एंड बीटा फॉर्म। तो ये इनॉल फॉर्म का कब बनते हैं, जो एनोमेरिक कार्बन होता है, एनोमेरिक कार्बन मतलब फर्स्ट कार्बन जो अल्डिहाइड कीटोन ग्रुप में होता है, तो एनोमेरिक कार्बन जो होता है वो इनॉल होता है इसमें, दैट्स व्हाई
एनोमेरिक कार्बन। और ये कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है आपका, ये हाइड्रोजन, ये देखो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ग्रुप, वो उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है जब कीटोइनॉल फॉर्म होता है। सो whenever there is a ketoenol formation of sugar, the arrangement on the anomeric carbon atom of the hydroxyl and hydrogen group. So depending on that, they are classified as a alpha and beta. So alpha means if hydroxyl group of anomeric carbon atom is the same side as that of the terminal hydroxyl group of alcohol. अगर ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड में है तो उसको बोलेंगे अल्फा, अगर वो अपोजिट साइड में है तो उसको बोलेंगे बीटा। सो दे आर नथिंग बट द एनोमर्स। ईपीमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स क्या होते हैं, ये क्लियर कर लो। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है, बहुत बार लास्ट ईयर में भी आया था। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पूछता है मेयर्स रिएजेंट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, नाइपर में भी आया था ये क्वेश्चन। देखो पूछता है मेयर्स रिएजेंट कंसिस्ट ऑफ, क्या ऑप्शंस क्या है, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, देन ऑप्शन सी है आपका पोटेशियम आयोडाइड एंड आयोडीन, ऑप्शन डी है पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेयर्स रिएजेंट मतलब क्या, सो इट इज अ रिएजेंट यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर अल्कलॉइड्स। सो अल्कोलाइड्स के लिए जो अल्कोलाइड्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं, कितने रिएजेंट होते हैं, वो सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको एक क्वेश्चन नहीं देखना है, आपको एक क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन देखना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आपका मेयर्स रिएजेंट इज नथिंग बट द पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एम फॉर मर्क्यूरी। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक लगा सकते हो आप, एम फॉर मर्क्यूरी। सो पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड इज द मेयर्स रिएजेंट। चलिए देख लेते हैं कितने रिएजेंट होते हैं। यहाँ पे चार्ट दिया मैंने, केमिकल टेस्ट फॉर अल्कोलाइड्स, रिएजेंट एंड उसका इम्पोर्टेंस क्या है। सो फर्स्ट वन इज अ मेयर्स रिएजेंट एंड दीज आर द रिएजेंट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अल्कोलाइड्स। मेयर्स रिएजेंट क्या होता है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। उसमें क्या होता है, जब आप अल्कोलाइड अगर आपके सॉल्यूशन में होंगे तो व्हाइट और पेल येलो और क्रीम कलर आपको आएगा। क्रीम कलर प्रेसिपिटेट obtained with the प्यूरिन ग्रुप ऑफ अल्कोलाइड्स। याद रखो, जो प्यूरिन ग्रुप के अल्कोलाइड्स होते हैं वो मेयर्स रिएजेंट के साथ आपको येलो क्रीम पीपीटी देंगे। नेक्स्ट वन इज अ ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट। सो ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट इज नथिंग बट पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सबनाइट्रेट और आयोडीन। ये जीपैट 20 में क्वेश्चन पूछा था। मेयर्स रिएजेंट इज नथिंग बट द पोटेशियम बिस्मथ सबनाइट्रेट आयोडीन सॉल्यूशन। तो यू विल गेट ऑरेंज कलर प्रेसिपिटेट विद द अल्कोलाइड्स। वैगनर्स रिएजेंट क्या होता है, थर्ड वैगनर्स रिएजेंट इज नथिंग बट द आयोडीन सॉल्यूशन। यू विल गेट अ ब्राउन और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। Next one is a tannic acid. 5% tannic acid is used. So tannic acid has a property to precipitate the alkaloids. So the precipitate is soluble in the dilute acid or ammonia. ठीक है, जो precipitate मिलेगा वो। Now next one is Hager's reagent. Hager's reagent is nothing but the saturated solution of picric acid. जो पिक्रिक एसिड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो हैगर से। सो यू विल गेट अ येलो कलर प्रेसिपिटेट। वन इज अमोनिया। सो अमोनिया रेनिकेट टेस्ट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया रेनिकेट। सो पिंक फ्लोरोसेंट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड विद द मोस्ट ऑफ द अल्कोलाइड। सो इसमें आपका 4 या 5 क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा। ये चार्ट पूरा बाय ऐड कर लो आप, ये चार्ट मेरे बुक में एज इट इज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, टाइप which type of alkaloid is present in the Kurchi bar? So there are different type of alkaloid, classes of alkaloid like purine alkaloid, indole alkaloid, benzyl isoquinoline, pinendyl type of alkaloids. ठीक है, स्टेरॉइडल alkaloid. So याद रखो कि कुर्ची बार्क में आपका होता है स्टेरॉइडल alkaloids. ठीक है, स्टेरॉइडल alkaloid जो है वो है कुर्ची बार्क में। आपका alkaloids होता है आपका मॉर्फिन में। इंडोल टाइप का alkaloids होता है आपका विंका और राउलपिया में। ठीक है, प्यूरिन टाइप का अल्कोलाइड होता है आपका जो भी आपके टी कॉफी होते हैं उसमें प्यूरिन टाइप का अल्कोलाइड होता है। ठीक है, याद रखो, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके। नंबर 22 देखो पूछता है स्वीट ऑर्डर ऑफ फेनल इज बिकॉज ऑफ। ठीक है, कि फेनल का स्वीट ऑर्डर क्यों है। ऑप्शन ए दिया है फेनकोन, ऑप्शन बी एनेथॉल, ऑप्शन सी फिनोलिक ईथर, ऑप्शन डी फिनोलिक कीटोन, ऑप्शन ई बोथ बी एंड सी। ठीक है, देखो जो फेनल है आपको फेनल फ्रूट, तो उसका बायोलॉजिकल सोर्स तो अभी यहाँ पे टाइम नहीं मुझे, तो बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कांस्टेंट याद रखना। तो उसमें केमिकल कांस्टेंट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फिनोलिक कीटोन एंड फिनोलिक ईथर। तो जो फिनोलिक ईथर होता है वो होता है एनीथॉल, जो फिनोलिक कीटोन होता है वो होता है फेंकोन। नाउ फेंकोन इज रिस्पांसिबल फॉर द पंजेंट ओडर ऑफ द फिनॉल एंड स्वीट टेस्ट इज बिकॉज ऑफ द एनीथॉल। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, एनीथॉल क्या है,
फेनोलिक ईथर है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई, बोथ बी एंड सी, बी एंड सी, ठीक है। सो इट इज अ करेक्ट आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आपको ये नोट्स चाहिए सब कुछ, तो ये बुक में है, फंडामेंटल्स ऑफ जीपैट में, और क्वेश्चंस क्रैकर अचीवर में है। आपको ये चाहिए तो आप, मेरा नंबर है यहाँ पे दिए है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई नंबर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जो प्रेस बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए।